Chapter 2, people as resource. That means the population is an asset for the economy rather than a liability. Population become human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. So first of all, we understand why the population become assets. With the help of these three things, first one is education, that means providing appropriate or appropriate education or sufficient education among the peoples, among the population, and provide training regarding the to improving their skill to gather a job and providing medical care facility by the government. These three things, or with the help of these three factors, any country make their population as an assets. Clear? यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को में या कंट्री में जो पॉपुलेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन है वे अगर एजुकेशन, प्रॉपर दैट मीन्स जो मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए किसी टास्क या काम को करने के लिए, यानी एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो प्रोवाइड कराना. एंड ट्रेनिंग and medical care. Training, that means make them efficient to work, make them trained regarding the job, regarding to gather job, receive a job, and provide medical care. That means medical facility. With the help of that, they are fit and fine to work. They never get ill. They all time 24/7 days he is fit to work on a proper manner. So he will the person or the population will be an asset of the country because they have a skill and productive knowledge among them. So this knowledge and productive skill utilized by the government to increase the productivity of the country. When the productivity of the country increases, the person, the population, which is earlier treated as burden, now that will be an assets of the country. That means working people, यानी इसमें number of population जो है वो वर्किंग पीपल में कन्वर्ट करना, जिससे आइडल पर्संस और डिपेंडिंग ऑन द अदर्स को रिड्यूस करना, जिससे जितने ज्यादा पर्संस वर्किंग बन जाएंगे वे उनकी प्रोडक्टिविटी स्किल इंक्रीज हो जाएगी, जिससे वो एक बर्डन या लायबिलिटी के तौर पर नहीं बल्कि एसेट्स के तौर पर फिर माने या देखे जाते हैं. ठीक है. सो आई एम शेयरिंग सम स्क्रीन regarding some PPT on this topic, so please watch and read and arise question. Start. This is file, drive, share, connect, okay. Chapter 9. People as resource. Okay.
Are you seeing this? Look at this screen. Clear? Primary activity: agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, and quarrying. This is the secondary activity. फर्स्ट वन देखिए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. आपको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Good. The quality of population depends upon the literacy rate, death of the person indicated by life expectancy and life skill formation required by the people of the country. That means this topic say that quality of population, whenever the government improve the quality of population, then the population must become an asset. So for improving the quality of population, the literacy rate must be improved, health rate must be improved, that means providing health care, and a skill formation required the people of the country. A skill, that means training, providing training to develop their skill, efficiency, to work more at less time. So the quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. तो इस तरह से जब पॉपुलेशन को हम लोग क्वालिटी इंप्रूवमेंट देते हैं या पॉपुलेशन में क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन बिकम एसेट्स विच accelerate the rate of growth rate of the country. ठीक है? Literacy and unhealthy, illiteracy and unhealthy population are a liability for the economy. क्यों? Illiteracy, that means जहां लोग educated नहीं होते या very less education है. Unhealthy population है यहाँ, यानी लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार होते हैं, यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो वे ज्यादातर समय अपने हेल्थ को लेकर वो घर पर रहते हैं, तो उनका वो वर्क नहीं कर पाते, और इलिटरेट होने की वजह से वो एक हाई इनकम वाले जॉब को परफॉर्म नहीं कर पाते, यानी वो सिर्फ लेबर एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व होता है, और अनहेल्दी होने से वो फुल टाइम यानी होल ईयर वो वर्क परफॉर्म नहीं कर पाते, जिससे इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन डिक्रीज होता है. दैट मींस ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी आल्सो विल डिक्रीज. सो लिटरेसी एंड हेल्दी पीपल आर एन एसेट्स. ठीक है? लिटरेसी जो है उसकी वर्क इफिशिएंसी को बढ़ाता है, थिंकिंग पावर इंक्रीज करता है. ठीक है? तो वो एक फिजिकल वर्क के साथ साथ मेंटल वर्क भी कर सकता है, जिससे उसकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी. और हेल्दी पीपल मोर डे वर्क करेगा इन कंपैरिजन ऑफ अनहेल्दी पीपल, तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी
वो बीमार कम पड़ेंगे, तो उनका जो इनकम का एक बड़ा हिस्सा ट्रीटमेंट में खर्च होता है वो बचता है। तो जब इस तरह से उनकी इनकम बढ़ेगी तो ऑफ कर दो, तो क्या होगा कि पॉपुलेशन जो ज्यादा टाइम तक काम करेगा तो इनकम इंक्रीज होगा, और वो इनकम का यूज बिजनेस में या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने में यूज करेगा। ठीक है, फर्स्ट देखिए हेल्थ। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस एंड अनहेल्दी person become a liability for an organization. ये increase, I want to increase this screen, but something went wrong, that's why I am not increasing it. Let me try. Okay, is it irritable? Okay. So the health of a person help him to realize his potential and ability to fight illness. एक healthy person में इलनेस से फाइट करने की एबिलिटी डेवलप होती है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और अनहेल्दी पर्सन बिकम लायबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। ठीक है, किसी का हेल्थ अगर अच्छा होता है तो ये माना जाता है कि वो ज्यादा वर्क करेगा, वो इंडिस्पेंसेबल यानी वो लीव कम लेगा। ठीक है, पूरे एनर्जी और इफिशियंसी के साथ वर्क या टास्क परफॉर्म करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो इंक्रीज। क्लियर? सो improvement of the health status of the population has been the priority of the country. Our national policy to aims to improving the accessibility of healthcare. तो इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस क्या होता है, ये कंट्री के प्रायोरिटी में होनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स नेशनल पॉलिसी जिसका एम होता है हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। यानी अंडर प्रिविलेज्ड यानी वैसे पॉपुलेशन का सेगमेंट या एक क्लास या सेक्शन जहां पर वो अंडर प्रिविलेज है, यानी जहां पर उन सब वैसी सुविधाएं नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो वहां पर इसको बढ़ाया जाए जिससे लोग वो हेल्दी होंगे। और जब वो हेल्दी होते हैं तो क्या होता है, पर्सन्स ज्यादा काम करते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर जाती है। ठीक है, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल कि जैसे कोई पर्सन अगर हेल्दी होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक काम करता है, छुट्टी नहीं लेता, लीव नहीं लेता, उसका एब्सेंटीज्म कम होते हैं, ओवरऑल एब्सेंटीज कम होता है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बर्डन कम होता है, तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाती है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती है बिकॉज ऑफ दे वर्क मोर डे इन द ईयर। ठीक है, तो वो बढ़ा हुआ इनकम अपने एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर एक्सपेंस कर सकता है। क्लियर? तो इस तरह से हेल्थ का बेनिफिट होता है। और अगर जस्ट इसके रिवर्स अगर अनहेल्दी पर्सन है तो उस केस में वो होल ईयर नंबर ऑफ डेज कम वर्क करेगा, दैट मीन्स दे गेट लीव फ्रॉम देयर वर्क, तो वो जितना ज्यादा छुट्टी पर रहेगा तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम डिक्रीज होती है, एंड उसके कंपैरिजन में उस हेल्थ को ठीक होने के लिए अदर से हेल्थ पर एक्सपेंसेस भी करना पड़ता है, जिससे उसकी सेविंग कम होती है और वो अगेन बर्डन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। नाउ
education, that means education is an important input for a growth of economical position, economical passion of a country. It opened a new horizon for him, provided new aspiration and developed values of life. देखिए एजुकेशन क्या है, एक इनपुट है. इनपुट दैट मीन्स जब वो पॉपुलेशन में इंक्लूड करेंगे यानी इंप्रूव द एजुकेशनल लेवल अमंग द ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये एक इकोनॉमिकल पैशन ऑफ अ कंट्री को इंप्रूव करता है, यानी बढ़ाता है, ग्रो करता है. ठीक है, तो एजुकेशन, एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी आल्सो. इट एनहांस द नेशनल इनकम, cultural richness and increase the efficiency of governance. Educated people का थिंकिंग, तो एजुकेशन जो है थिंकिंग डेवलप करता है और सोसाइटी को भी डेवलप करता है. जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उनका थिंकिंग अलग होता है, वो लेस टाइम में मोर वर्क कर सकते हैं, जिससे उसकी सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होती है और नेशनल इनकम इंप्रूव करने में वो हेल्प करता है. कल्चरल रिचनेस यानी सोसाइटी को ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं. एंड गवर्नेंस इफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, यानी ओवरऑल जो गवर्नमेंट होते हैं वो भी तो सोसाइटी का एक पार्ट होता है. तो इस तरह से गवर्नेंस की इफिशिएंसी को वो इम्प्रूव करते हैं. यानी जितना ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, हायर एजुकेटेड होंगे, उनकी उतनी ज्यादा इफिशिएंसी इंक्रीज होती है. तो जब पॉपुलेशन का इफिशिएंसी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली गवर्नेंस का भी इफिशिएंसी इंक्रीज होता है. नेक्स्ट, चलिए